علی مینک فین صاحب، ان سے میں گزارش کرتا ہوں کہ وہ ابھی ان کی تقریر کریں، اردو میں بات کریں گے انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولا تقف ما لیس لک بہ علم ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا۔ صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین، مجھے بہت خوشی ہے کہ آپ لوگوں سے ملنے کے لیے ایک وقت مل گیا۔ ابھی ایک بار اور آنے ملے گا تو مجھے معلوم نہیں ہے، اس لیے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اس باتوں کو غور سے سن لینا اور اس پر عمل بھی کرنا چاہیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ آیت میں قرآن کے جو بنی اسرائیل میں آتا ہے، وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، آپ کو جس پر علم نہیں ہے اس پر کام نہیں کرنا چاہیے، اس کو فالو نہیں کرنا چاہیے۔ علم نہیں دیا گیا، صرف انسانوں کے لیے یہ علم دیا گیا ہے، یہ سمجھنے کے لیے اور اس پر عمل کرنے کے لیے۔ آپ ابھی دیکھیں گے تو معلوم ہوگا، جو ایک کوا جو ہے نا، وہ پرانے زمانے میں جب دنیا شروع ہوا اس زمانے میں کیسے اس کا گھونسلے بناتے ہیں اسی طرح آج بھی بناتا، کچھ بھی فرق نہیں ہے۔ لیکن انسان کو دیکھیے، انسان بھی پرانے زمانے میں ایسا ہی چلتا تھا، غاروں میں رہتا تھا اور جنگلوں میں رہتے تھے۔ ابھی بھی اس جیسا انسان ہم کو سمجھنے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ چھوڑ کر رکھا ہے۔ انڈمان میں ایک آئلینڈ ہے، سینٹینل آئلینڈ، اس آئلینڈ میں وہ لوگ رہتے ہیں، کوئی بھی ادھر نہیں جا سکتا کیونکہ وہ لوگ یہ تیر مار کے مار دیں گے، اس لیے کوئی بھی وہاں جانے کے لیے اجازت نہیں جا سکتا۔ وہ لوگ ایسے ابھی جیتے ہیں۔ ابھی ہمارے جو آدمی جو لوگ ہیں بہت زیادہ ہو رہا ہے۔ دیکھیے ابھی ہمارے بچپن میں ہمارے منیکوئی دیپ میں، منیکوئی آئلینڈ میں صرف 3500 لوگ رہتے تھے۔ ابھی اس کا تعداد کتنا ہو گیا؟ 12,000 سے زیادہ ہو گیا۔ ابھی دیکھیے اتنے چھوٹے زمانے میں 100 سال کے اندر اتنا زیادہ ہو گیا۔ لیکن وہ لوگ جو ہے وہ لوگ زیادہ نہیں ہوتا، ایسا ہی رہتا، کیونکہ وہ لوگ کھانے کا چیز جو ہے وہ گھاس وغیرہ کھاتے ہیں، گھاس کا پھل کھاتے ہیں اور کچھ آگ کا استعمال وغیرہ نہیں کرتے۔ ہم جیسے نہیں ہیں وہ لوگ، اس کا یہ تعداد زیادہ نہیں ہوتا، ایسا ہی رہتا ہے۔ لیکن ابھی بھی ان لوگوں کو اس کا تعداد کتنا ہے کر کے معلوم نہیں کر سکا، کیونکہ کوئی بھی وہاں نہیں جا سکتا۔ ابھی ہیلی کاپٹر جا کے نزدیک بھی نہیں آ سکتا، وہ لوگ جنگلوں میں رہتے ہیں۔ کتنے آدمی وہاں ہے کر کے ابھی کسی کو بھی معلوم نہیں ہے۔ ایسا چل رہا ہے دنیا۔ اس لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ سوچنا چاہیے اور سوچ کے ہم کام کرنا چاہیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے لیے یہ سب بتایا ہے۔ قرآن میں اور ایک آیت میں آتا ہے، وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آیَتَيْنِ فَمَحَوْنَا آیَةَ اللَّيْلِ
वजअलना आयतन नहारी मुबसिरतन लितब्तगू फज़लन मिन रब्बिकुम वलितअलमू अदद स्सिनीन वल हिसाब। ऐसा आता बनी इसराइल सूरत में। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आपके लिए वजअलना लैल वन नहार आयतें, दो आयतें, लैल और नहार, दिन और रात और दिन दोनों को बनाया है। किस लिए? इसकी वजह से आप ये दिनों का हिसाब जान सकते हैं और उसके सूरज के रोशनी में दिन में आप काम कर सकते और अंधेरे में आप आराम कर सकते। ये सब अल्लाह सुब्हानहू व तआला बहुत तफसील से कुरान में ये सब बातें बता दिया है। और हमारे लिए ये दिनों का हिसाब, सालों का हिसाब, ये सब इंसानों के लिए ही ये इसका ज़रूरत होता है। और जानवरों के लिए ये सब चीज़ ये ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इंसानों के लिए इसकी ज़रूरत होता है। इसलिए हम इसको हिसाब रखते हैं और जानते हैं। अभी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी रसूल होकर आया था। कहा जाता है 1,24,000 अम्बिया इस दुनिया में आए, आखिर में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आया। हमारे लिए ये सब अम्बियाओं का ये डिटेल सब मालूम नहीं है, वो कब आया, कितना साल रहा, कितना दिन रहा, ये सब कुछ कुरान में नहीं है। वो आया है, बताया है लोगों को, ये सब बातें हैं, लेकिन ये डिटेल्स वगैरह नहीं है। लेकिन आखिरी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनका पैदाइश कब हुआ, वफ़ात कब हुआ, कैसे दुनिया में काम किया, ये सब बातें हमारे लिए किताबों में मिलता है। इसलिए उनको हम पढ़ना सीखना चाहिए और उस पर अमल भी करना चाहिए। अभी पूछेंगे तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विलादत कब हुआ और उनका वफ़ात कब हुआ, ये दोनों वाक़या एक ही दिन, एक ही तारीख़ में हुआ है। रसूलुल्लाह का विलादत मंडे में हुआ, रसूलुल्लाह ही बताया है। वो मंडे जो है उसका उस दिन में रोज़ा रखता है रसूलुल्लाह। उसके बारे में पूछा गया तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया वो मेरी विलादत के दिन है। अभी मालूम है उसी दिन में रसूलुल्लाह का वफ़ात भी हुआ। और ऐसा होने तो रबीउल अव्वल 12 बोलते हैं, 12 बोलते हैं। वो पुराने ज़माने में उनके पास जो कैलेंडर थे वो लूनार कैलेंडर थे, आर्टिफिशियल लूनार कैलेंडर बना के यहूदी लोग इस्तेमाल करते थे। वो ही कैलेंडर को लोगों ने भी इस्तेमाल किया। अभी हम तारीख़ में किताबों में देखेंगे तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विलादत कब हुआ करके देखेंगे तो ठीक खबर हमको नहीं मिलता। सब लोगों ने बोला है रबीउल अव्वल 12 में विलादत हुआ और 12 में वफ़ात भी हुआ कर, ये बात सब लोगों ने बोला है। लेकिन इसमें दूसरे लोगों ने इख्तिलाफ बताया है। कोई बोलते हैं 9 तारीख हुआ। अभी हिसाब हम देखेंगे तो रबीउल अव्वल 9 में वो मंडे नहीं आएगा। अभी वो मंडे में विलादत हुआ, मंडे में वफ़ात हुआ, ये दोनों बात हमको मालूम है। इसलिए ये लोग जो कहते हैं रसूलुल्लाह का विलादत रबीउल अव्वल 12 में हुआ और रबीउल अव्वल 12 में वफ़ात भी हुआ, ये ठीक है, लेकिन 12 नहीं है। अभी भी आप देखेंगे तो हमारे कैलेंडर आप देखेंगे तो 12 में आपको पौर्णमी देखेंगे, पौर्णमी ये फुल मून देखेंगे। 12 में तो फुल मून नहीं आएगा, फुल मून आता है महीना के बीच में। इसलिए ये उसमें ये गलती करके हमको मालूम होता है। अभी हम देखेंगे तो किताब में देखेंगे तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी विलादत रबीउल अव्वल 12 कहीं भी नहीं बोला है। बोला है मंडे में मेरा विलादत हुआ कर। और हमको मालूम है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वफ़ात कब हुआ, तो उसके सब तारीख़ में सब ठीक हमको मालूमात मिलते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये
हमारे जो क्रिश्चियन कैलेंडर के मुताबिक जून 8 तारीख को 632 में वनडे में वफात हुआ था। वो दिन हम अब हिसाब देखेंगे तो रबीउल अव्वल 15 आता है, फुल मून डे होता है। इसी तरह विलादत पे हम ठीक तरह देखेंगे तो हमको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विलादत कब हुआ, वो मई 5 तारीख को 570 में, वो भी मंडे होता है। उस दिन चांद का ग्रहण भी हुआ था। ये सब हम बातें हमको ये मिलता है। अभी ये सब हिसाबें हमको नेट में भी मिलता है। सब कुछ लोगों ने सीख लिया, सब कुछ मालूम है, ठीक तरह सबके हिसाब हमारे पास है। लेकिन फिर भी एक बात देखेंगे तो आज शाबान कितना तारीख है, कोई भी बता सकता है? आज शाबान का कितना तारीख है बताइए। शाबान कौन सा तारीख है आज? है कितना? 16 है ना आज, कल 15 था, आज 16। अभी इसमें भी आप देखेंगे तो इख्तिलाफ होगा इधर। अभी शाबान में गलत हो जाएगा तो रमज़ान गलत हो जाएगा ना। अभी रमज़ान में कब रोज़ा शुरू करना, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ठीक कुरान में बता दिया। कुतिबा सियाम कमा कुतिबा अल्लज़ीना, वो आयत आता है ना, शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान। रमज़ान में रोज़ा रखना है। अभी रमज़ान में रोज़ा रखना बोलेंगे तो कब से शुरू करेंगे? रमज़ान कब से शुरू करेंगे रोज़ा? पहला तारीख को शुरू करना है ना। अभी पहला तारीख निकालने के लिए हम पहला तारीख कैसा निकालेंगे? अभी इसके बारे में हमको हदीस मिलता है, सूमू लिरुयती वाफ्तिरू लिरुयती। इसके माना कि कैसा दिया है? चांद देखकर रोज़ा रखो, चांद देखकर रोज़ा ख़त्म करो। ये चांद देखकर बोलने से क्या है, इसका माना क्या है, क्या होता है बताइए ना। क्या? हाँ, हिलाल। हिलाल देखकर बोलने से क्या माना? देखने के बाद है या पहला है? इसका माना क्या होता बोलिए ना। हिलाल देखने के बाद है या उससे पहला है? हिलाल कब दिखाई देता? शाम में। कब? कौन से दिन? नहीं है, मैं पूछता हूँ। हिलाल हम देखते हैं ना, सूरज डूबने के बाद हिलाल दिखाई देता। वो कौन सा दिन में, महीना के आखिरी दिन में या पहला तारीख को दिखाई देता है? आखिरी दिन हिलाल नहीं देख सकता। पहला तारीख को हम हिलाल देखते हैं, उसको देखने के बाद पहला तारीख मिलेगा, ये सोचने की बात है। चांद को, हिलाल को देखने के बाद पहला तारीख मिलेगा? नहीं मिलेगा, दूसरा तारीख से मिलेगा। अभी दूसरा तारीख रोज़ा नहीं रखना चाहिए, पहला तारीख से शुरू करना है। पहला तारीख फ़र्ज हो जाता है। पहला तारीख को एक दिन में खाना खाना आराम हो जाता है। अभी ये सोचने की बात है। अभी ये इसी में गड़बड़ हो रहा है दुनिया में पूरा ये गड़बड़ है। क्या? पहला तारीख कैसे? ये हिलाल देखने के बाद पहला तारीख नहीं मिलेगा। नहीं है, हिलाल दिखाई देता है पहला तारीख को सूरज डूबने के बाद। तब क्या हुआ? उसको देखने के बाद हमको पहला तारीख कभी भी नहीं मिलेगा। अभी लोग क्या समझ बैठे हैं, मुझे मालूम है। हमारे छोटे ज़माने में हमारे आइलैंड में क्या करते हैं लोग, देखते हैं वो चांद दिखाई देता, उसके ऊपर रहेगा ऐसा ऊपर, वो पहला तारीख का चांद है, कभी दूसरा तारीख का होगा। अभी उसको देखने के बाद पहला तारीख आपको नहीं मिलेगा। इसीलिए कुरान में हिलाल के बारे में
अल्लाह सुब्हानहू व तआला नहीं बताया। एक बात आता है कुरान में, वल कमर क़द्दरनाहु मनाज़िला हत्ता आदा कल उर्जूनिल क़दीम। ये उर्जून क़दीम जैसा होने तक के वो मनाजिल चाँद के लिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला मुकर्रर किया है करके सूरह यासीन में आता है। ये उर्जून क़दीम क्या चीज़ है? ये क्या है? ये उर्जून क़दीम जैसा चाँद कब दिखाई देता है, मालूम है आपको? है कब दिखाई देता है? फजर में, महीने के आखिरी दिन के एक दिन पहला आप फजर को देखेंगे तो आप महीने के आखिर में 26 से लेकर देख के आइए, चांद सूरज के नज़दीक आता रहेगा। हर दिन में 6 उंगली नीचे आएगा। आके एक दिन में सूरज और चांद एक साथ निकलता है। उस दिन में चांद को नहीं देख सकता, वो महीना का आखिरी दिन होता है। उसका पहले दिन में ये उर्जूनुल क़दीम जैसा चांद को हम देख सकते हैं। उसको देखने से हमको क्या होता है, ठीक पहला तारीख मिलेगा, गलत नहीं होगा। अगर आप चांद को देखने तक रहेंगे तो पहला तारीख चला जाएगा। वही हो रहा है अभी हमारे पास सब हिसाब, चांद का हिसाब सब कुछ ठीक से है, उसमें कुछ गलती नहीं है। हम बहुत देखे हैं उसके बारे में। अभी ये रमज़ान शुरू होता है मंडे में, मंडे पहला तारीख है, उसके संडे में चाँद को नहीं देख सकता। उसके पहले शनिवार के दिन सुबह को आप देखेंगे तो ये उर्जूनुल क़दीम जैसा चाँद को आप देख सकते हैं। देख लीजिए, देख सकता है। उसको देखने से मालूम होता है कल चाँद नहीं दे सकता, वो महीना का आखिरी दिन होता, वो होगा संडे। फिर अगर उसके बाद आने वाले दिन जो होता रमज़ान का पहला तारीख होगा, उसमें रोज़ा फ़र्ज हो जाता। अभी देखिए इधर कैसा शुरू होगा, ये साल में भी इसमें गड़बड़ होगा। ये गड़बड़ ठीक नहीं है, इसको ठीक करना चाहिए। मैंने तो इसके बारे में बहुत काम किया है, सऊदी अरेबिया में 5 बार गया है इसके बारे में, लेकिन इसका अभी तक इसका हल नहीं हुआ। ऐसा ही है। अभी लोगों को क्या चाहिए, इसके बारे में बात होना चाहिए। इसके जानदार आदमी लोग जिसके पास इल्म है, इसके बारे में सोच होना चाहिए। और एक ये बात पर ये लोग सब लोग आना चाहिए। नहीं है तो ये गड़बड़ चलता रहेगा। ईद के दिन हम रोज़ा रखते रहेंगे, इसमें क्या हो जाता, अल्लाह का अज़ाब हम सब पर आ जाता। नहीं होता। ईद के दिन रोज़ा रखना हराम होता है ना, ईद के दिन रोज़ा हराम है। रसूलुल्लाह ने कह दिया ईद के दिन रोज़ा रखने वाले हमारे में नहीं है कर। अभी ईद के दिन रोज़ा नहीं रखता। ईद के दिन तो 2 दिन नहीं हो सकता। शव्वाल पहला तारीख ईद का दिन होता। शव्वाल का पहला तारीख कितना दिन होगा एक साल में, बोलिए ना, कितना? एक ही दिन होगा वो। ये इस रमज़ान में, रमज़ान शुरू होता मंडे और रमज़ान में 29 दिन है। मंडे में ख़त्म होता, ट्यूसडे जो होता, ट्यूसडे को क्या बोलते हैं, हाँ, मंगल के दिन ईद होगा। अभी इससे अलग करेंगे तो हम सब गलती में हो जाता। ये तो इनकार हो जाता है ना, अल्लाह का आयत का, कुरान का आयतों का इनकार हो जाता है। ये बहुत बड़ा मसला है। इसलिए हम सब सोचना चाहिए, आलिमों से कहना चाहिए इसके बारे में सोचने के लिए। अभी इधर आपके पास बहुत सारे कैलेंडर रहेंगे, देखिए कितना कैलेंडर है, सब कैलेंडर गलत है। ये कैलेंडर गलत छपना ठीक है या गलत है? कुरान क्या कहता? ये कैलेंडर जो हमारे बीच में ये शाये करता है ना, ये गलत छपना, ये कुरान के हुक्म से क्या है, हराम है या हलाल है? बोलिए ना। गलत कैलेंडर छप के ये लोगों में इसको शाये करना, ये हलाल है या हराम है? हराम है ना। ये हराम फिर क्यों ये लोग करते हैं, इसके बारे में पूछ होना चाहिए ना। मन राम इंकुम मुनकरम फल्युगय्यिरहु बियदिही, रसूलुल्लाह का हदीस है। आपको किसी को भी
कुछ गलत काम आपको नज़र आए तो हाथ से रोको। अगर हाथ से नहीं करेंगे तो कर सकते तो बोल के उसको रोको। उसको भी आपको ये नहीं सकते तो क्या करना चाहिए, दिल में तो समझ लो ये गलत है करके। अभी दिल में तो लोग नहीं समझते हैं, सोचते हैं ये गलत है करके। ये कैलेंडर हमारे बीच में चाय होता है, उस कैलेंडर में क्या दिया हुआ है देखिए। आपके पास कैलेंडर है, एक कैलेंडर भी है यहाँ, बोलिए ना, एक भी कैलेंडर है यहाँ, दिखाइए, देखिए। हमारा कैलेंडर नहीं है, ये इधर का कैलेंडर, इधर का, हाँ इधर जो कैलेंडर जो होता वो चाहिए ना। हमारा कैलेंडर कोई भी इस्तेमाल नहीं कर सकता। ये कैलेंडर हिजरी कमेटी शाये करता, इसको हमने 1993 में शुरू किया। इसको कोई भी नहीं इख्तियार नहीं करते, इसको मस्जिद में रखेंगे तो फेंक देगा वो लोग। वो गलत कैलेंडर जो है मस्जिद में रहेगा। कैलेंडर है यहाँ नहीं है, देखिए आप एक कैलेंडर लेके आना चाहिए। हिजरी कैलेंडर हम यूज़ करते हैं, ये हिजरी कैलेंडर हमारे लिए नहीं, हम मुसलमान के लिए हैं जो अल्लाह और रसूल पर ईमान रखते हैं। ये कैलेंडर को ये इस्तेमाल करना चाहिए। क्यों इस्तेमाल नहीं करते, हम पूछना चाहिए आप लोग क्यों इसको नहीं फॉलो करते करके आप पूछना। मैं पहला जो आयत बताया, वला तकुफ मा लैसा कबी इल्म इन्न सम वल बसर वल फुआद कुल्लु उलाइका काना अन्हु मस्सूला। अल्लाह ने साफ कह दिया, आप इल्म जिस पर आपको नहीं है उसको फॉलो करना नहीं है, इल्म होना चाहिए, उस पर आप अमल करना चाहिए। अभी आप ये गलत कैलेंडर यहाँ छप के, रमज़ान कब, ये इधर के कैलेंडर में कब शुरू होता हो रमज़ान, हमारे बीच में जो कैलेंडर है उसमें रमज़ान कब शुरू होता, कब शुरू होता है देखिए आप लोग, कब शुरू होता है? 12 तारीख कौन सा दिन होता है? मंडे में तो ठीक है, लेकिन जो हमारे वहाँ केरला में जो कैलेंडर है उसमें गलत दिया है। अभी इसका हिसाब कैसे करते हैं इसके बारे में हमको कुछ जानकार होना चाहिए ना। ये दिन का हिसाब कैसे लगाते हैं, एक दिन कैसा, कहाँ शुरू होता कहाँ ख़त्म होता, इसके लिए हमारे शरीयत में क्या हुक्म है? 12 तारीख कौन सा दिन होता? अभी ठीक होता, ठीक शुरू होता, अभी ख़त्म कब होता? ख़त्म कब होता है? हाँ गलत हो गया, 19 दिन है रमज़ान, मंडे से शुरू होकर मंडे में रमज़ान ख़त्म होता है। यहाँ जो है बता रहा है कि ईद कौन सा दिन में दिया है? जुमेरात के दिन है, थर्सडे। गलत हो गया ना, 2 दिन में फर्क है। अभी हम क्या करना चाहिए, ये कैलेंडर जो गलत छपता है ना उसके बारे में कुछ काम होना चाहिए। उसके लिए मैंने बहुत आदमियों से कहा है हमको कोर्ट में जाने पड़ेगा, नहीं तो ये ठीक नहीं होगा। कोर्ट में हम ये जाने पड़ेगा और वहाँ इसके बारे में चर्चा होना चाहिए। ऐसा करेंगे तो कैलेंडर ठीक हो जाएगा। कैलेंडर ठीक होगा तो ठीक तरह रोज़ा और रमज़ान ये ईद सब कुछ ठीक होगा। पहला हम ये कैलेंडर को ठीक करना चाहिए। मैंने तो इसके बारे में रिसर्च किया, बहुत स्टडी किया। क्या हो गया था 1965 में, कौन सा साल में? 1965 में, 65 में फरवरी 2 तारीख को कैलिकट में ईद हुआ था। उसके बाद वही दिन मक्का में भी ईद हुआ, लेकिन इंडिया में कोई कोई जगह नहीं हुआ, कहीं भी नहीं हुआ।
कैलिकट में ईद हुआ था। अभी ईद मनाने के बाद हमारे द्वीप वाले जहाज़ में चढ़ते, अगले दिन वेंसडे में कोई आइलैंड में जाएगा तो वहाँ ईद मना रहे लोग। अभी कुछ नहीं कर सका, वहाँ लोग नहीं आया, इसलिए वो एडमिनिस्ट्रेटर साहब शिप में था, वो कह दिया अभी इधर टाइम वेस्ट करना नहीं है, हम मिनिकोई में जा लेंगे। कई जुमेरात के दिन कल ईद नहीं रहेगा, वहाँ जा करके वो लोग वहाँ गए। वहाँ जाने से जुमेरात के दिन ये मिनिकोई वाले ईद मना रहे थे, कुछ काम कर नहीं सका, वहाँ कुछ गड़बड़ हो गया। वो ये पुलिस वगैरह कोचिन से ये नेवल शिप में लेके आने पड़ा, ऐसा गड़बड़ हुआ था 1965 में। अभी इसके बारे में लोग नहीं सोचते, यही गलत कैलेंडर चपके लोगों में शाये करते और लोगों को कुछ भी मालूम नहीं होता। हमारे ये इस्तेमाल में जो कैलेंडर है वो ग्रिगोरियन कैलेंडर है। ग्रिगोरियन कैलेंडर इस्लाम से कुछ भी वास्ता नहीं है। अल्लाह सुब्हानहू ताला और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके बारे में कुछ भी नहीं कहा, लेकिन हम सब लोग ये क्रिश्चियन कैलेंडर को इख्तियार करते हैं, उसको तरजीह करते हैं। ये बहुत बड़ी गलत है, इसको हम नहीं करना चाहिए। इसके कैलेंडर के बारे में बातचीत होना चाहिए और ये रमज़ान ठीक शुरू होना और ईद ठीक दिन मनाना, इसके बारे में हम लोगों से बात करना चाहिए। अभी हम लोग यहाँ हैं, कोई भी आलिम लोग मुझे यहाँ नज़र नहीं आता। क्यों कोई भी नहीं आता? हम सब मुसलमान एक है, एक रसूल पर ईमान लाते हैं, एक कुरान पर ईमान लाते, क्यों इसके बारे में नहीं सोचते? हम सोच होने चाहिए ना, इसके बारे में हमको बातचीत होना चाहिए और ठीक करना चाहिए। कुछ भी नहीं करेंगे तो ऐसा ही चलते जाएगा, हम गलती में होगा और अल्लाह के रहमत के जगह हम पर अल्लाह का लानत आता रहेगा। इसीलिए ये सब गड़बड़ होता, हम कुरान को फॉलो नहीं करते। अल्लाह सुब्हानहू ताला कुरान में एक आयत में बता दिया, वक़ाल रसूल या रब इन्न कौमी इत्तख़ज़ू हाज़ल कुरान महजूरा। ये लोग कुरान को छोड़ दिया करके रसूल कहेंगे करके, ये हमारे ऐसा काम चल रहा है। इसलिए हम लोगों को क्या चाहिए, इसके बारे में सोचना चाहिए, इसको ठीक करना चाहिए और लोगों को भी कहना, सब लोग जो अल्लाह रसूल पर ईमान रखते हैं, इस कैलेंडर को मुस्लिम लोग सब इस कैलेंडर को फॉलो करना चाहिए। अभी सवाल होता है, अभी दिल्ली में और बेंगलुरु में ये तारीख अलग हो सकता है या नहीं, इसके बारे में हदीस में हमको एक रिवायत मिलता है। कुरैब एक वो सहाबी नहीं है, वो शाम को जाता है, शाम में इधर आता है, उधर के तारीख अलग है और मदीना की तारीख अलग है। इसमें बातचीत हुआ और लोगों ने क्या कह दिया, ये सब ऐसा हो सकता है करके लोगों का ख्याल है। इसके बारे में बातचीत होना चाहिए, इसको हम ठीक करना चाहिए। इसलिए आप लोग सब इसके बारे में काम करना चाहिए और मेरे बात को मैं ख़त्म करता हूँ। हाँ, क्वेश्चन बोलिए। मैं 5 बार सऊदी अरब गया। क्या हुआ बोलने से वो लोग इस पर बात करने को आलिम लोग तैयार नहीं। वो लोग समझ बैठे हैं ये ऐसा ही होगा करके समझ बैठे, लेकिन उधर वो कैलेंडर बनाने वाले उम्मुरकुला कैलेंडर का अथॉरिटी से उनसे बात किया, उनसे बात करके हम एक मीटिंग रखा। रमज़ान का 7वां तारीख था, मीटिंग शुरू हुआ 10 बजे शुरू हुआ, ऐसा शुरू होके चला गया। अभी ज़ोहर का वक्त आ गया, ज़ोहर का अज़ान हो गया। अज़ान होने सवाल जवाब हुआ, टाइम दिया जाएगा। हाँ, अभी अस्सलाम वालेकुम।
जनाब अली मलिक फ़ैन साहब ने हमको बहुत कीमती मालूमात से आगाह किया है, हम सब इनका शुक्र अदा करते हैं।